Starting with kinematics. Lecture number 3. Type 3. Last time the first type was uniform motion. The second type is uniform accelerated motion. The third type, which I am discussing today, is non-uniform motion. Put the heading as non-uniform motion. Type 3, non-uniform motion. It is very much necessary to know the types of the sum, because whenever the question comes, you have to relate the sum with that category. If you can't relate the sum with the category, you will not be able to do the sum only. You should know whether it is fitting in type 1, type 3, type 7, type 8. Okay, you will be able to do. Type 3 is non-uniform motion. First point, write this. In non-uniform motion, acceleration is variable. Acceleration is variable. A is not a constant. A is not a constant. If A would be a constant, I would have used V is U plus AT, S is UT plus half AT square, V square is equal to U square plus 2AS. But over here, A is not constant. Second point. Since A is not constant, we take the help of calculus. That is differentiation and integration. That is differentiation and integration. We use calculus, that is differentiation and integration. Okay. Third point. From ST to VT or VT to AT. Now what is all this? I'll tell you. ST means displacement time equation. VT means velocity time equation. And AT means acceleration time equation. From ST to VT or VT to AT, differentiate and differentiate. I'll teach you everything right now. What is differentiation and everything. You can write the points. And from AT to VT and VT to ST, integrate. Okay. Today we'll be dealing with equations based on differentiation. Integration I will do after some time when you will become well versed with your mathematics thing. Differentiation basic parts I'll teach you today. Okay, so that we can solve some non-uniform motion questions. Listen now, we are doing some mathematical part over here. Then I'll relate with the physics 5th point. Okay, pehle some mathematics. So differentiation. This is maths part only. Differentiation मतलब होगा
Differentiation is written as d by dx or d by dt or d by dy or d by df etc. So what do you mean by this? D by dx means differentiation with respect to x. Stop writing and listen over here. Differentiation with respect to x, differentiation with respect to t, differentiation with respect to y, differentiation with respect to f. Getting it? More or less use आपके मैथ्स के टीचर आपको बताएंगे. I am just doing the mechanical method so that we can relate this with physics. Okay, I'll teach you 2-3 formulas. वही formulas हमको इधर use करना है. That's why I'm teaching you this mathematics part. More or less will be done in mathematics properly. Okay, so we are just doing the mechanical part of it. Second, सुनिए इधर. d by dt of a constant is always 0. पहला फॉर्मूला है. मतलब what? Differentiation of a number 6 will be 0. Okay, this is mathematics formula. Differentiation of a constant कितना होता है? 0. मतलब differentiation of 6 will be 0. Differentiation of -2 कितना होगा? 0. Any constant number, if I tell you d by dx of tan 45, 0. You understand? So differentiation of a constant कितना होता है? 0. First part. Second, d by dx of x raised to n will be n x n minus 1. ये रूल है मैथमेटिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. Derivative of x raised to n is n x n minus 1. Example I'll give you. d by dx of x raised to 6 will be 6x 6 minus 1. That will be 6x5. Look ना, just following this rule. ये क्या है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, उसका मैथमेटिक्स के टीचर आपको बताएंगे. मुझे सिर्फ मैकेनिकल मेथड में इंटरेस्ट है. वी आर गोइंग टू यूज दिस इन फिजिक्स. डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -2 क्या होगा? -2 x रेज टू -2 -1, दैट इज -2 x रेज टू -3. लुक ना, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ओके x? It will be written as 1x 1 minus 1, that is 1x0. x raised to 0 is what beta? 1. Derivative of 6x cube. अच्छा, इसमें ध्यान दीजिए क्या करना है. ये 6 को बाहर निकालना है, because derivative is always of a variable x. This is d by dx of x ना. तो जो x को छोड़ के जो भी टर्म हो उसको बाहर निकाल देना है. वी आर कंसिडरिंग दैट एज अ कांस्टेंट. तो 6 बाहर आ जाएगा. इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? ओनली x क्यूब. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब? 3x स्क्वायर. सो दिस विल बी 6 into 3x स्क्वायर. दैट विल बिकम व्हाट? 18x स्क्वायर. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? अब यहां पर देखिए, d by dt of x square. बोलिए, ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, और अंदर क्या है? x है. ये नहीं चलेगा. इफ दिस इज x, दिस इज x, x x x x x x t x नहीं चलेगा. दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t and function is of x. यहां पर अंदर क्या होना चाहिए? t स्क्वायर. या तो ये x होना चाहिए. what will become? 2t.
Are you all understanding what's happening? तो यही चीज़ है, यही करना है हमको. You all copy this down, then I'll continue with the sums. Yes, beta. We were continuing with the fourth point of physics. In between, we had useful results of differentiation. Okay. Now fourth point. आप लोग fifth point है, fourth point है? Fifth point है. Okay. Fine. Tell me the definition of velocity. Velocity is rate of change of displacement. We write like this. Rate of change of displacement. Rate of change. This is the rate of change. Of displacement. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के पास हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स है. व्हाट आर द थ्री कोऑर्डिनेट्स? x, y एंड z. तो s कैन बी इन टर्म्स ऑफ x, y और z. क्लियर है ना? या तो पार्टिकल x में चल सकता है, या तो y में चल सकता है, या तो z में चल सकता है. अच्छा, यहां पर वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बेटा? टाइम. व्हेनेवर द वर्ड रेट कम्स, it is with respect to what beta? Time. So can I say over here s should be what? A function of what? Time. I'll give you example. एक मिनट एग्जाम्पल देता हूं मैं, आपको समझ आएगा. Suppose s is given as 6t cube minus 8t plus 4. Can I say s is a function of time? S is a function of time. And आपको पूछा है velocity कितना है? Very simple. They have asked you what velocity is how much. क्या करना है? Velocity is rate of change of displacement. That is the rate of change of displacement की जगह क्या लिखेंगे? 60 cube minus 80 plus 4. चलो now this 6 will come outside na. What is derivative of t cube? We have done it right now. What will be the derivative of t cube? 3t square. तो 6 तो बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव will become 3t square. बोलो. minus 8 will come out. What is derivative of t beta? 1, because it is t raised to 1 na, that will become 1t 0. And what is derivative of 4? 0. So can I say that velocity equation will become 18t square minus 8? समझ आ गई बात? Yeah. And you know this is a uniform motion or non-uniform motion. देखिए ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है. If you put t0 अलग वैल्यू, if you put t1 कुछ अलग वैल्यू, if you put t2 कुछ अलग वैल्यू. So it is a uniform motion or non-uniform motion? Non-uniform motion. Got it? ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. Everyone understood ना? Yes or no? Now 6 point. भाई ये सब पॉइंट्स आप लोग स्टार्ट में लिख दो, इसका बड़ा सम हम लोग बाद में करेंगे थोड़ी देर में, पूरा समझ आ जाएगा फिर. ओके, डोंट बी इन हरी राइट नाउ, वी आर जस्ट इन द लर्निंग फेज राइट नाउ. कैन एनीवन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? तो रेट ऑफ चेंज तो ऐसे ही है, वेलोसिटी ये है. यस और नो? अच्छा, वेलोसिटी जो होगा, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल, यहां से ही लेते हैं हम, इसका आंसर इज वेलोसिटी ना बेटा, या तो हम कुछ दूसरा लेते हैं. चलो, वेलोसिटी विल बिकम 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 8. कैन आई से वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम? तो आई हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो क्या हो जाएगा बताइए? एक्सेलरेशन विल बिकम व्हाट? dv बाय dt, दैट इज d बाय dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 8.
3, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है बेटा 2t, -4 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ टी कितना होता है बेटा 1, और डेरिवेटिव ऑफ 8 कितना हो गया 0. वी आर जस्ट अप्लाइंग द नॉलेज व्हिच वी डिड एट डिफरेंशिएशन. ये कितना हो गया, कम ऑन 60 -4. तो कैन आई से दिस इज एक्सेलरेशन इक्वेशन, एंड कैन एनीवन टेल मी इज दिस एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नॉट कांस्टेंट? बिकॉज जैसे टाइम हम वैल्यू पुट करेंगे ए का वैल्यू विल बी डिफरेंट. एंड कैन यू यूज काइनेमैटिकल इक्वेशंस? नो, बिकॉज देयर वाज v was u plus a t, but a was a constant. याद है 10 9.8. यहाँ पर a is not constant. जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे a चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये टाइप बनाया गया है. You are getting the understanding of this thing. I have not started with the sums. पहले ये चीज बराबर से समझ लो. क्लियर? लास्ट पार्ट, ये 6 पार्ट हो गए. 7th पार्ट, ए को क्या मैं लिख सकता हूं? dv by dt तो है ही, बराबर है ना बेटा? इधर ध्यान देना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. कैन आई राइट एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? dv by ds इंटू ds by dt. भाई मैंने क्या किया? मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई ds. इसी को कहते हैं चेन रूल. मैथमेटिक्स में इसको क्या कहते हैं? चेन रूल. आपने चेन बनाया ना, ऐसे चेन बनाया ना आपने, कनेक्टिंग चेन. बट ठीक है, नो यू डोंट नो द नेम, नो प्रॉब्लम. बट व्हाट इज ds by dt बेटा? ds by dt देखिए क्या है, v. तो कैन आई राइट एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v dv by ds. बोलो, देखो ना भाई, ये v है, dv by ds. एक्सेलरेशन का नया इक्वेशन बनेगा v dv by ds. now इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? आई विल टेल यू, वेट, लिसन. एग्जाम्पल, बेटा वेलोसिटी जो दिया रहेगा ना, दैट विल बी गिवन एज s³ प्लस s² प्लस 4, बिकॉज वी आर टेकिंग d by ds ना, वी आर टेकिंग d by ds. तो वेलोसिटी शुड बी अ फंक्शन ऑफ t. नहीं चलेगा. वेलोसिटी शुड बी अ फंक्शन ऑफ s, या वेलोसिटी शुड बी अ फंक्शन ऑफ x, या वेलोसिटी शुड बी अ फंक्शन ऑफ y, या वेलोसिटी अ फंक्शन ऑफ z. बिकॉज s की जगह x भी लिख सकते हैं ना. टाइम होगा तो चलेगा नहीं है. कभी कभी न्यूमेरिकल में देखी भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, तो वो यूज नहीं कर सकता है, बिकॉज d by dt यहां पर लगाना है, यहां पर नहीं चलेगा. तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कम ऑन, आई नीड a. तो a का फॉर्मूला क्या रहेगा? v dv by ds. तो कैन आई राइट दिस एज v d by ds ऑफ दिस v? बोलो. तो a क्या रहेगा? v. इसका इक्वेशन निकालो. कम ऑन, फर्स्ट 3 कम ऑन 3s² प्लस 2s प्लस 0 ना. बट व्हाट इज v का जनरल इक्वेशन? ये तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v की जगह कैन आई पुट दिस पूरा s³ प्लस s² प्लस 4, 3s² प्लस 2s. ऐसे ही कुछ इक्वेशन बनेगा a का. समझ में आ गई बात? क्या फर्क है इधर v का और इधर phi का? क्या फर्क है? ओवर हियर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड ओवर हियर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ s या x या y या z. तो फर्क ऐसे पहचानने का. या नो, you can't trace. No, this is a rule of mathematics. They're different. This is with respect to v, and this is with respect to s. This is with respect to s, and this is with respect to t. You can't write this. Okay. Double differentiation will come later, beta. We start with the sum. Question 1 लिखिए. A particle is moving along the x-axis. A particle is moving along the x-axis. Its x coordinate varies as its x coordinate varies as
x इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 10, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई जो x कोऑर्डिनेट है उसका फंक्शन ये है, मतलब इट इज नॉन यूनिफॉर्म, इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम 0 पे इतना, टाइम 1 पर इतना. इफ यू पुट यू विल गेट द वैल्यूज. फाइंड there are 3 parts in the sum. Find a part, find a expression for instantaneous velocity, expression for instantaneous velocity and instantaneous acceleration as a function of time. Instantaneous velocity and instantaneous acceleration as a function of time. Second, find the value of initial value of x coordinate, initial value of x coordinate initial velocity and acceleration Third point, find average velocity and average acceleration between time 0 to time 1 second. ठीक है, ये पूरा बड़ा क्वेश्चन है. अच्छा, माई एम ऑफ डूइंग दिस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इज व्हाट. आप ऐसे 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज में कर सकते हो. आपने होमवर्क किया रहेगा 2-3 टाइम, तो आपको पता रहेगा कि सब्जेक्टिव सम्स ऐसे रहते हैं वे यू कैन सॉल्व लॉट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाय डूइंग दैट सम ओनली. ओके, सो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक्स का. फर्स्ट पार्ट, दे हैव आस्क्ड यू व्हाट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सब लोग इधर ध्यान देना बेटा, प्लीज पे अटेंशन. क्या ढूंढना है? वी ढूंढना है एंड ए ढूंढना है, और इंस्टेंटेनियस ढूंढना है. इंस्टेंटेनियस मतलब क्या? इट विल विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, टाइम के हिसाब से वो चेंज होगा. तो हाउ टू फाइंड वेलोसिटी बेटा? वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या है? dx by dt है. वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहां पर x के तौर पर दिया है, s नहीं दिया है. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? s कैन बी x आल्सो, y आल्सो एंड z आल्सो. नो प्रॉब्लम विद दैट. So can I say it will be d by dt of 2t cube minus 4t square plus 6t plus 10 minus 10. आप लोग को डेरिवेटिव निकालने आता है? कम ऑन बताइए. ये 2 तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 3t square minus 4 is outside, will become 2t plus 6 derivative of t beta is 1 and minus 10 का हो गया 0. वेरी सिस्टमैटिक. नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा बेटा? 6t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6. दैट इज व्हाट? योर वेलोसिटी इक्वेशन. एंड कैन आई से इज दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? यस, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो जैसे इफ आई पुट t t t, इट विल कंटिन्यूअसली चेंज. इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अच्छा, हाउ टू गेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? Instantaneous acceleration is the rate of change of what? Velocity ना. तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है. That will become d by dt of v बेटा 6t square minus 8t plus 6. अच्छा बताइए क्या हो जाएगा? 6t square हो गया 2t minus 8 डेरिवेटिव of t is 1 and 6 का डिफरेंशिएशन 0.
सो ए का डिफरेंशिएशन, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम ऑन, 12t माइनस 8. दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वैल्यू. तो ए पार्ट इज ओवर. बेटा एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग. So we are taking help of mathematics today to solve our physics. This is the use of mathematics. Okay, जो काम आता है physics में generally. Okay, ये first part है. Second part B. क्या कह रहा है बेटा, question क्या कह रहा है? Find the initial value. अच्छा, जब भी initial की बारे में they tell you, it means time is zero. Whenever initial is mentioned means put t is equal to 0 in all the equations. क्या क्या पूछा है, इनिशियल x पूछा है, इनिशियल v पूछा है, इनिशियल a पूछा है. सो पुट t in all x also, v also, a also. अच्छा आप देखिए इधर, आप देखिए इधर, पुट t 0 in x, तो ये हो गया 0 0 0, ये -10. तो कहना इसे x इनिशियल बन गया -10 मीटर्स. तो ये सब ऐसा यूनिट में है, ठीक है, वी आर अज्यूमिंग दैट ऐसा यूनिट में है. अच्छा v में 0, v के इक्वेशन में if I put 0 बेटा, तो ये 0 ये 0 ये 6 हो गया. मतलब v इनिशियल जो है दैट इज +6 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इनिशियल एक्सेलरेशन? ये हो गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. If I want to get the feeling of what is happening actually, I can draw this on the integer line and I can see what happens. Look over here बेटा. Can I say x0 मतलब क्या, ओरिजिन, मगर पार्टिकल यहाँ पर नहीं है, पार्टिकल टाइम 0 पर कहाँ पर है, -10. मतलब x is -10 पर मीटर पर टाइम 0 पर पार्टिकल इधर है. Where is the direction of velocity? 6. So can I say initial velocity is 6 meter per second over here? And where is the initial acceleration बेटा, इधर कितना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस नहीं लिख रहा है, माइनस साइन की जगह मैंने डायरेक्शन लिख दिया. माइनस डबल बार माइनस नहीं लिखना है, माइनस साइन की जगह क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज हैपनिंग टू द मोशन? इट विल रिटार्ड इन दिस डायरेक्शन and then at some point velocity will become equal to 0 and then it will turn and go in that direction forever and never return back. And this is a non-uniform motion. समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर है? मतलब इससे पहले ही हो जाएगा, एक्चुअली ओरिजिन के पहले ही हो जाएगा, ओरिजिन बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मैं यहाँ पर कैसे, बिकॉज हर सेकंड में कितना घट रहा है, 8 घट रहा है ना. नो प्रॉब्लम विद दैट. क्लियर? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? थर्ड पार्ट, लिसन टू मी, पे अटेंशन. क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 1 second. लुक ओवर हियर. What is the formula for average velocity? Total displacement upon total time. सुनिए, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं. इट इज x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट याद है ना, r फाइनल बार माइनस r इनिशियल बार अपॉन टाइम t. कैन आई राइट एवरेज वेलोसिटी एज x at 1 second माइनस x at 0 second अपॉन टाइम इज 1 second? बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम 0 to 1 second. तो विल बी x फाइनल एट 1 second माइनस x 0 second अपॉन 1. अच्छा, x 1 second कैसे मिलेगा, x 1 second कैसे मिलेगा? पुट 1. तो ध्यान दीजिए इधर, ये हो गया 2 माइनस 4 दैट इज -2, -2 प्लस 6 4, 4 माइनस 10 -6. तो यहाँ पर -6. डोंट वेस्ट टाइम इन सब्स्टिट्यूटिंग एवरीथिंग एंड जस्ट लुक. अच्छा, x0 पे कितना था, x0 पे तो पता ही है ना -10 है, तो इट विल बी माइनस ऑफ -10 बाय 1. ये समझ आया? माइनस ऑफ -10 ना, माइनस ऑफ -10. तो ये कितना हो गया बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द v एवरेज सेकेंड. फाइन.
यू गेटिंग इट? अच्छा आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल. फाइनल कितने सेकंड पर है? 1 सेकंड पर. इनिशियल कितने सेकंड पर है बेटा? 0 सेकंड पर. अपॉन टाइम कितना लगेगा? 1 सेकंड. व्हाट टू डू? v का वैल्यू 1 सेकंड में 1 सेकंड में डालना है. तो ये क्या हो गया? 6 माइनस 8 दैट इज -2 प्लस 6 विल बिकम व्हाट? 4 माइनस 0 सेकंड पर तो हमको पता है दैट इज 6. कितना हो गया बेटा ये? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज व्हाट योर एवरेज एक्सेलरेशन. अभी आपको इससे बाहर से कुछ नहीं पूछेगा. मतलब you have asked instantaneous velocity, instantaneous acceleration, average velocity, average acceleration, and आपको initial के बारे में भी पूछेगा. तो ये है. Write this down first. बेटा इधर ध्यान दीजिए please. A particle is moving along the x-axis. X is equal to 2t square minus 4t plus 6. ये दिया हुआ है. x is equal to 2t square minus 4t plus 6. Find the x coordinate. Find the x coordinate and acceleration when velocity is 0. Find the x coordinate and acceleration when velocity is 0. चलो 2 मिनट का टाइम है, जल्दी सॉल्व करो. by calculate constant numbers. v0. अरे भाई ये इक्वेशन सॉल्व करना है. इक्वेशन वो है v0, तो v0 इज कंडीशन. डू इट. इक्वेट दैट थिंग. Equate. Yes. IQ. Use your IQ. Put it. This function is given to you. X is a function of time. बेटा इधर ध्यान दो. They have asked you velocity 0 है. तब ये सब क्या है? जब वेलोसिटी 0 है तो उसका टाइम निकालना पड़ेगा और उसी टाइम को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा. लुक हाउ टू डू दिस सॉल्यूशन. यू नो वेलोसिटी इज dx by dt, rate of change of displacement. So d by dt of 2t square minus 4t plus 6, it will become 4t minus 4 is v ना. बट जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई ये तो 0 है, तो कहना इसे ये 0 है, तो 4t minus 4 0, मतलब t